Hello everyone, it's so good to see you again in this today's blessing video. हेलो दोस्तों, इस आशीष वीडियो में आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। So many of you have been continuously sharing your testimonies that you've received through these today's blessing videos. बहुत से लोग अपनी गवाही को हमारे साथ बांट रहे हो जो आपको टुडेस ब्लेसिंग वीडियो से मिलता है। And we are so happy to read all of your comments, all of your emails of God's goodness in your life. आपके कमेंट्स और आपके ईमेल पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है कि प्रभु आपके जीवन में भलाई कर रहे हैं। As you continue to claim God's promise each and every day, you will see God working in your life. प्रतिदिन जब आप प्रभु के वादे पर भरोसा रखोगे, आप अपने जीवन में प्रभु को काम करते हुए देखोगे। Today God has given us such a promise from Jeremiah 15:16. आज ऐसा ही वचन प्रभु ने हमें यिर्मयाह 15:16 में दिया है। When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष का कारण हुए। Yes, my dear friends, the words that God speaks give us joy and it is our heart's delight. हाँ मेरे दोस्तों, जो वचन प्रभु हमसे कहते हैं उससे हमें खुशी मिलती है और वह हमारे मन का आनंद होता But है। there is a word in this verse that says, when your words came, I ate them. लेकिन इस वचन में एक शब्द है कि मानो आपके वचन को मैंने खा लिया। That's what Jeremiah says gave him joy. यिर्मयाह कहते हैं इसी वजह से मुझे आनंद मिला। Today in this world, आज इस दुनिया में when we are stressed, जब हम तनाव में रहते हैं, when we are celebrating, जब हम जश्न मनाते हैं or when we want to forget our sadness, या जब हम अपने दुख को भूलना चाहते हैं, we scroll in our phone हम अपने फोन को स्क्रॉल करके and try to find the best restaurant और सबसे अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढते हैं for us to go and have all the food ताकि हम वहां जाएं और अच्छे से खाएं and forget about all our problems. और हमारी सारी समस्याओं को भूल जाएं। And then we post a story saying, और उसके बाद हम एक स्टोरी पोस्ट करते हैं this is the food for my soul. कि यही मेरी आत्मा का भोजन है, This is giving me so much of peace. कि इससे मुझे बहुत शांति मिल रही है, It's filling me with so much of happiness. कि इससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है। After all my sadness, मेरी सारी उदासी के बाद, after all of my grief, मेरे सारे दुख के बाद, after all of my stress, मेरे सारे तनाव के बाद, maybe you may have been going through so much of stress in your work, हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत अधिक तनाव से गुजर रहे हो, or maybe you're going through a failure in your या relationships. शायद आप आपके रिश्ते में असफलता का सामना कर रहे हो। You may be going through so much of pressure in your family, आप अपने परिवार में बहुत अधिक दबाव का सामना कर रहे होंगे or going through financial या crisis. वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। And to hide all of that stress, you may say, let me go have some biryani. इन सारे तनाव को छुपाने के लिए आप कहते होंगे मैं जाकर बिरयानी खाता हूँ, Just to forget about all my problems. जिससे मैं सारी परेशानियों को भूल When I जाऊं। eat it, it'll give me peace. जब मैं इसे खाऊंगा तो मुझे शांति I'll मिलेगी। forget about all my stress for a moment. मैं मेरे सारे तनाव को कुछ समय के लिए भूल जाऊंगा And after we eat it, और उसे खाने के बाद we take a nice long nap. हम एक बहुत अच्छी नींद लेते हैं। But then when we open our eyes, लेकिन जब उसके बाद हम उठते हैं, all that stress and all that sadness, it all comes back. वे सारा तनाव और वे सारा दुख सब कुछ वापस आ जाता है। Our mind is filled with confusion. हमारा मन गड़बड़ी से भर जाता है, Our mind is filled with stress. हमारा मन तनाव से भर जाता है। But my dear friends, लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, the Bible says बाइबल में लिखा है in Matthew 4:4, मत्ती 4:4, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं but by every word that comes from the mouth of हर God. एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। What do these words do in our life? ये वचन हमारे जीवन में क्या करते हैं? What does it give us? ये हमें क्या देते हैं? We see in John 6:63 हम यूहन्ना 6:63 में देखते हैं that these words give us कि life. ये वचन हमें जीवन देते हैं। Yes, when we are filled with this life, हाँ, जब हम इस जीवन से भरे रहते we हैं, have everlasting joy, हमें शाश्वत आनंद मिलता है। and it makes our heart delightful, वह हमारे दिल को आनंदित कर देता है, full of the Lord's delight. प्रभु के आनंद से परिपूर्ण। This joy is not temporary. यह खुशी क्षणिक नहीं है, This joy does not fade away, यह खुशी कभी फीकी नहीं पड़ती, but it keeps bubbling in our heart. लेकिन यह हमारे मन में उबलती रहती है। So today, as you receive God's promises and as you intake
His words into your soul. इसीलिए आज जब आप प्रभु के वादे प्राप्त करते हैं और उनके वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, And as Jeremiah says, as we eat those words into our soul, जैसे यिर्मयाह कहते हैं, मानो प्रभु के वचन को आत्मा में खा लिया हो, it will fill us with His joy. वह हमें उनके हर्ष से भर देगा। It will make our hearts full of delight. वह हमारे मन को परिपूर्ण कर देगा And we will have peace, और हमें शांति प्राप्त होगी clarity, और स्पष्टता, and it will energize और us. उससे हमें ऊर्जा मिलेगी, It won't put us to sleep, जिससे हमें नींद नहीं आएगी, but it will gear us up as to what we should do in our life. लेकिन इससे हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमारे जीवन में हमें क्या करना है। So today, intake the Lord's promise, इसलिए आज प्रभु के वादे को स्वीकार the करो। Lord's words for your life, प्रभु के वचन आपके जीवन के the लिए, direction for your life, आपके जीवन की दिशा को, and God will give you joy as you walk with जब Him. आप प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु आपको आनंद देंगे। Yes, receive this life today. हाँ, इस जीवन को आज पा लीजिए, You will have joy. आपको खुशी मिलेगी। Shall we thank God for this promise चलिए इस वचन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद and दें receive this joy? और इस खुशी को पाले। Lord, today help us to remember all of your promises. प्रभु आज के दिन आपके सारे वादे हमें याद दिलाइए, Believe in your word आपके वचन पर विश्वास करें and take it as a direction for our life, Lord. और इसे अपने जीवन में मार्गदर्शक की तरह As रखें। we meditate on your word, जैसे ही हम आपके वचन पर मनन करें, let it be our bread इसे हमारी रोटी बनने दो and let it be the food for our soul. और ये हमारी आत्मा के लिए भोजन बन जाए। Today, let your word bring us joy आज आपका वचन हमें खुशी दे, as we believe and obey your जैसे हम word, वचन पर विश्वास करें और उसका and पालन let it करें fill our hearts with delight. और हमारे दिलों को आनंद से भर दे। Today, help us to trust in you आज हमें आप पर भरोसा करने में मदद and करें live according to your word. और आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। In Jesus' name I यीशु pray. के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष My करे। dear friends, if this video was a blessing to मेरे you, प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए आशीष है तो share it with someone so that it will be a blessing to them as well, किसी के साथ शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी आशीष पाए, so that you can share the hope with them also. ताकि आप उन लोगों के साथ आशा को बांट सके। If you want to see more videos like this and to receive these daily blessings every single day, अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं और टुडेस ब्लेसिंग को प्रतिदिन चाहते हैं, then subscribe to this तो channel. इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। प्रिय लोगों, डॉक्टर पॉल दिनकरन और सिस्टर एवेंजेलिन पॉल दिनकरन गुवाहाटी आ रहे हैं। हाँ, जीसस कॉल्स गुवाहाटी पार्टनर्स ब्लेसिंग मीटिंग शनिवार 18 अप्रैल को 3 बजे होने वाली है। Everyone says, हर कोई कहता है I'm working so much, मैं इतना कड़ा but परिश्रम everything is a करता failure. हूं, परंतु मैं असफल हो जाता हूं। I'm loving everyone so much, मैं हर किसी को बहुत प्रेम but करता हूं, everyone is against me. परंतु हर कोई मेरे विरोध में I जाता am हूं। under bondage. मैं तो एक बंधन महसूस करता Let me हूं, die. मुझे मर जाने दीजिए। But Jesus says, परंतु यीशु ने कहा, I have come to set you free. मैं इसलिए आया हूं कि तुझे स्वतंत्र I will करूं। remove your bondage मैं तेरे बंधनों को तोड़ डालूंगा and make you enjoy the full measure of blessings in your life. और तेरे जीवन में मेरे बहुतायत की आशीषों को तू पूर्ण रीति से आनंद उठाएगा। सभी जीसस कॉल्स के पार्टनर्स से व्यक्तिगत रीति से मिलकर उनके लिए प्रार्थना करने के लिए डॉक्टर पॉल दिनकरन और सिस्टर एवेंजेलिन पॉल दिनकरन सेवा करेंगे और सामर्थी प्रार्थना करेंगे और मीटिंग में उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए वो व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। हम गर्मजोशी से आपको न्योता देते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित होइए और परमेश्वर की आशीष प्राप्त कीजिए। जगह है प्राग ज्योति ITA सेंटर, आसाम कल्चरल ट्रस्ट, MG रोड, मास्कोवा, गुवाहाटी 781009। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 6380752290 या 8826340055 पर। तो शनिवार 18 अप्रैल दोपहर 3 बजे जीसस कॉल्स गुवाहाटी पार्टनर ब्लेसिंग मीटिंग को बिल्कुल न चूकें। Precious Brother Albert Massey, happy birthday. प्रिय भाई एल्बर्ट मसीह, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you richly according to 2 Corinthians 12:9. My grace is sufficient for you, and my power is made perfect in weakness. दूसरा कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है।
Father, let the arthritis go in Jesus' name and financial blessings come. हे पिता, यीशु के नाम से गांठिया रोग दूर हो जाए और आर्थिक समृद्धि आए। And the gastric problem of Sister Rajni be healed. बहन रजनी के पेट की समस्या भी ठीक हो जाए। Christy, have great success in the studies and a golden future open up. Amen. क्रिस्टी को पढ़ाई में खूब सफलता मिले और उसका भविष्य उज्जवल हो, वह खुलकर बात करे। आमीन। God bless you. Precious Brother Augustine Hansduk and Sister Carmela Murmu, happy wedding anniversary. Congratulations. May this year be a year of great grace. प्रिय भाई अगस्टिन हंसडक और बहन कर्मिला मुर्मू, विवाह के वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई हो, यह वर्ष आप दोनों के लिए एक बड़े अनुग्रह का वर्ष होने पाए। Psalm 112 and verse 2. The generation of the upright will be blessed. भजन संहिता 112 वचन 2, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। Mrs. Carmela and Brother Augustine, be healed in Jesus' name, be well and have divine protection. श्रीमती कर्मेला और भाई अगस्टिन, यीशु के नाम से आप दोनों चंगे हो जाएं, आप ठीक रहें और परमेश्वर की सुरक्षा में रहें। Patras, have great success in the studies, and Paulus have great success with a government job and a wonderful life partner. पतरस को पढ़ाई में खूब सफलता मिले और पौलुस सरकारी नौकरी और एक बेहतरीन जीवन साथी की आशीष पाए। Parents and mother-in-law have good health in Jesus' name. Amen. माता पिता और सास स्वस्थ रहें, यीशु के नाम से आमीन। Brother David Dayal, along with you, I wish Rubab Joy David, your darling grandson, on his first birthday. Congratulations and happy birthday, Rubab. भाई डेविड दयाल, आपके साथ साथ मैं आपके प्यारे पोते रुबाब जॉय डेविड को भी उनके पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। रुबाब, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। According to Haggai 2:19, from this day on, the Lord will bless you. हग्गै 2:19 के अनुसार आज से परमेश्वर आपको आशीष दे। Bless Rubab, Lord, with long life, good health and divine strength. हे प्रभु, रुबाब को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और ईश्वरीय बल प्रदान करें। Brother David and Sister Nasreen, be healed in the name of Jesus. भाई डेविड और बहन नसरीन, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। Every sickness come out. Be healed. Thank you, Lord. हर एक रोग दूर हो और ये चंगे हो जाएं। धन्यवाद प्रभु। Joy David and Sonia Joy have a brilliant future and divine protection. In Jesus' name, Amen. जॉय डेविड और सोनिया जॉय का भविष्य उज्जवल हो और इन्हें परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Brother Ephraim Michael, happy birthday. प्रिय भाई एफ्राइम माइकल, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। God bless you richly according to Jeremiah 31:16. Your work will be rewarded, declares the Lord. यिर्मयाह 31:16 के अनुसार परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर कहते कि तेरे परिश्रम का फल तुझे अवश्य मिलेगा। Father, bless Brother Ephraim with protection and good health, blessing in the job and peace in the family. हे पिता, भाई एफ्राइम को सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें, नौकरी में सफलता और परिवार में शांति प्रदान करें। Sister Sunita, have good health and spiritual grace. बहन सुनीता को उत्तम स्वास्थ्य और आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो। Abhishek and Anmol, be blessed in their professional career and have a blessed future. In Jesus' name, Amen. अभिषेक और अनमोल को उनके पेशेवर कैरियर में सफलता मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो, यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Brother Shailendra Kumar and Sister Hema, happy wedding anniversary. Congratulations. प्यारे भाई शैलेंद्र कुमार और बहन हेमा, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। According to Deuteronomy 15:10, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. व्यवस्था विवरण 15:10 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सभी कामों में और हर उस काम में तुम्हें आशीष देगा जिसमें तुम हाथ लगाओगे। Bless him with a new house and a good job and spiritual grace. उन्हें नए घर, अच्छी नौकरी और आत्मिक अनुग्रह की आशीष दें। And bless Sister Hema with healing from diabetes and spiritual grace. बहन हेमा को मधुमेह से मुक्ति और आत्मिक अनुग्रह की प्राप्ति हो।
Mrs. Gopal Krishna be healed and have long life. गोपाल कृष्ण जी को चंगाई और दीर्घायु की आशीष मिले। Nikhil have blessing at the job. निखिल को नौकरी में सफलता और आशीषों की प्राप्ति हो। Sakshi have a good job and a spiritual blessing. In Jesus' name, Amen. साक्षी को अच्छी नौकरी और आत्मिक आशीर्वाद मिले, यीशु के नाम से, आमीन। God bless you.